So we were doing tense, this chapter. We have in our last class, we have seen what is tense and how verb and tense are related to each other. So basically what we have learned is that tense is basically past, present and future, and the word tense stands for verb form, or a series of verb forms used to express a time relation. So to express a time relation, we use tense. So this was basically what we have learned, and we have also seen several examples. Then we came to one of the most important parts of tense, and that was the three types of tense, that is present tense, past tense and future tense. Along with it, we have also seen how these three different parts are further divided into four parts. That is, present tense is further divided into simple or indefinite present tense, then present continuous tense, present perfect continuous tense, and then present perfect tense. Similarly, the other two tenses, past tense and future tense, are also divided. So we have seen these. It was pretty easy. The only homework that I gave you all was to learn this entire chart. Then we came to now. So once we are done with that, here are the basic rules. जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, here I have simple past tense. So subject plus V2 plus object, then subject plus V1 plus object. So these were the basic rules. And मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एक ही बात बोली थी कि ये जो चार्ट है, ये आपके स्टडी टेबल में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि this is where the basic spoken English gets started. क्योंकि आप जो भी इंग्लिश में आप बात करते हो, वो आप बिना वर्ब्स एंड बिना टेंस के आप नहीं बोलते. तो टेंस एंड वर्ब्स, ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए. एंड कब प्रेजेंट टेंस यूज करना है, कब पास्ट टेंस यूज करना है, इवन इंग्लिश सेंटेंस में किस टाइप के टेंस आप यूज करोगे, और वो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा. जैसे ये आता है, आई एट पिज्जा यस्टरडे. ये वाला मैंने एट ही क्यों दिया, ये V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही क्यों आया है, और यहाँ पे सब्जेक्ट ही क्यों है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा. तो ये एक ऑल टोटल सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाता है इंग्लिश का. तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक्स नहीं बनता है, ये आपका फाउंडेशन भी हो जाता है for your spoken English as well as your written English. But now as we are focusing on spoken English, इसलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस कर रही हूँ. तो टेंस एंड वर्ब, ये दोनों ऐसे चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छी तरह से सीखना है. So this was your basic chart. These were V1, V2 and V3, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिखाया था, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे V2 है, V1 है. तो आप मुझसे पूछ सकते मैम ये सब क्या है, V1, V2, V3. तो ये मैंने दिखा दिया था कि these were nothing but present, past and past perfect. So V1, V2 and V3, जहाँ जहाँ हम लोग को इस्तेमाल करना है वहाँ वहाँ हम लोग करेंगे. इसीलिए you have to memorize this entire chart along with these examples. This is very important. तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था. We are just revising some more examples of V1, V2 and V3. और यहाँ पे है verbs having same forms in three tenses. ये हो गया था basic concept tense का. After we were done with the basic concepts, फिर हम आए थे simple present tense में. और let's say हम लोग present tense में आए थे, और present tense का जो चार divisions है, उन सब से हम लोगों ने हम लोग we have gone through those sections. So here as you see, this is a simple present tense. ये rules है, यहाँ पे usage है, यहाँ पे example है. rules तो आप लोगों ने सीख लिया, बहुत अच्छा है. अभी usage की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि अभी आपको ये पता है कि ठीक है ये प्रेजेंट टेंस है, मैं अभी की बात कर रही हूँ, तो ठीक है ये प्रेजेंट टेंस यूज करूंगी. लेकिन कौन सा प्रेजेंट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस से चार सेक्शंस में डिवाइडेड है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब इन चारों में से हम कौन से यूज करें, ये भी तो हम लोगों को देखना है, राइट. तो उसी पे आधारित हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ये वाला रूल्स सब देखा था. तो आई गेस अगर आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो देखा होगा, तो आप लोग को ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज, उसका रूल्स एंड एग्जांपल्स पूरा यू ऑल नो दैट. ये था
अब बाकी एग्जांपल्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देन वी वेंट थ्रू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी हो चुका है। बहुत सारे रूल्स भी हो चुके हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका भी हो चुका है। यस, सो नाउ टुडे वी विल बी गोइंग थ्रू पास्ट टेंस। तो मैं हर एक दिन हर एक टेंस ले रही थी क्योंकि बिकॉज दिस टेक्स टाइम, स्पेशली दिस यूसेज पार्ट, इट एक्चुअली टेक्स टाइम। क्योंकि क्या होता है ना, ये रूल्स पार्ट हो जाता है, लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ये जो यूसेज की ये सिंपल पास्ट टेंस कब यूज करना है टेंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम लोग अभी देखेंगे। सो आज हम पास्ट टेंस करेंगे और कल फ्यूचर टेंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आ जाता है सिंपल पास्ट टेंस। अभी चार्ट अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा या सीखा होगा, उसमें आप लोगों ने देखा है कि उसका रूल क्या था कि सिंपल पास्ट टेंस में इधर वाज वेयर लगता है और नहीं तो ईडी लग जाता है वर्ब में। अब कैसे होता है, ये टू बी वर्ब्स, ये हमेशा याद रखना। ये वर्ब्स मैंने चैप्टर पढ़ाया था, उसमें ये टू बी आया था ना। व्हाट इज टू बी, मैं दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ पे, आप फिर से वर्ब्स पढ़ना, उसमें आ जाएगा। तो बिकॉज टू बी है तो वाज वेयर लगेगा ही, लेकिन इसमें कोई आईएनजी वगैरह नहीं लगेगा वर्ब्स पे, सिर्फ और सिर्फ ये वाज या वेर ही लगता है। लाइक दे वेर फ्रेंड्स या दे वेरंट फ्रेंड्स या दे वेंट, ये वाला इंटरोगेटिव है, ये वाला सेंटेंस गलत है, तो ये ऐसे होगा वेंट दे फ्रेंड्स करके ये क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये क्या करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस नहीं देती हूँ, मैं इनके ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस दे देती हूँ, बिकॉज आप लोग के लिए सुविधा होता है सीखने के लिए। तो ये हो गया एक रूल। और दूसरा रूल हो गया कि आप क्या वर्ब जो रहता है ना, वर्ब के साथ आप ईडी लगा सकते हो। और जैसे शी वॉकड यस्टरडे, दिस वाज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव में शी डिडंट वर्क यस्टरडे, बिकॉज यहाँ पे डिड लगा है ना, तो यहाँ पे ईडी नहीं लगेगा, ये हमेशा याद रखना। मतलब शी डिडंट वर्क यस्टरडे नहीं होता, शी डिडंट वर्क यस्टरडे। एंड क्वेश्चन में हो जाता है डिड शी वर्क यस्टरडे, डिड है ना, तो इसलिए यहाँ पे ईडी नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे डिड नहीं रहता तो ईडी लगता। सो ये हो गया बेसिक फॉर्म। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो सिंपल पास्ट टेंस है, ये हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में कब यूज करते हैं हम लोग, वो तो जानना है हम लोग को। अभी ऐसे भी हो सकता है कि कल की बात बोल दी मैंने या परसों की बात बोल दी मैंने, क्या उसमें भी सिंपल पास्ट टेंस लगेगा? वैसा तो होगा नहीं ना, उसमें भी डिफरेंस आता है। तो देखते हैं अब क्या कब लगता है ये सिंपल पास्ट टेंस। फर्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। ये बहुत सिंपल है, पास्ट में जो भी हो चुका है उसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। लाइक आई सॉ अ घोस्ट लास्ट फ्राइडे, ठीक है, इसमें सॉ है, सी सॉ सीन, V1 V2 V3, तो V2 यहाँ पे लगता है। नंबर टू, टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस मतलब सपोज कुछ दिन पहले या कल रात को बहुत सारे एक्शंस एक साथ हम लोगों ने किया था, तो वो बीत चुका है, लेकिन वो सीरीज ऑफ एक्शंस है। This is only simple past tense. So I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim. Then to express habits in the past. When I was young, I watched lots of television every day after school. तो कोई भी अगर आप लोग का हैबिट्स था जो पास्ट में, उन सब चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए we use simple past tense. And lastly for stative verbs. अभी ये stative verbs है क्या? ये सब verbs है, like have या want, be, think, believe, know, dislike, need, owe, wish, ये जो भी है ना ये verbs, इन सबको stative verbs बोलते हैं, ठीक है। जब भी ये सब है ना, यहाँ पे है और हैव या ओन, मतलब अगर आप कोई चीज पोजेस करते हो, ये पोजेस वाला वो नहीं है कि वो जो इंग्लिश मूवीज में भूत पोजेस करते, नो, दैट इज नॉट द पोजेशन। पोजेशन मीन्स सपोज आपका मोबाइल है ना, ये बोल रहे हो कि ये मेरा मोबाइल है, तो ये जो मेरा आप बोल रहे हो ना, मेरा खुद का है, दिस इज कॉल्ड पोजेशन या माई ओन सेल्फ, दिस इज माई ओन थिंग। सो whenever you say something like that, we use simple past tense, like he had a small cottage in the woods. अभी यहाँ पे मैंने जैसे प्रेजेंट टेंस में भी यूज किया था, यहाँ पे भी बहुत सारे मैंने दे दिया है, और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन दे दिया है, ताकि आप लोग इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस ही ना सीखो, नेगेटिव भी सीखो आप लोग।
तो ये वाला आप लोग देख लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। अभी देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी। मैं आप लोगों को जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही थी, तब मैंने आप लोगों को एक छोटा सा टिप बोला था कि जहां पर भी ये वर्ड कंटिन्यूअस रहता है टेंस में, हमेशा आईएनजी लगता ही है। सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस। मतलब ये सीखने में इतना मतलब ये नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता है कि जहां भी कंटिन्यूअस है आईएनजी लगेगा ही। लेकिन चेंज यहाँ पे सिर्फ आता है, जैसे प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगता था, यहाँ पे पास में लगेगा वाज वेयर। सो शी वॉज कुकिंग ऑल द मॉर्निंग। नेगेटिव में होगा शी वॉज नॉट स्लीपिंग व्हेन ही केम। इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो शी वॉज नॉट कुकिंग ऑल द मॉर्निंग। और इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस में क्या होता है, वॉज शी स्लीपिंग व्हेन ही केम होम या वॉज शी कुकिंग ऑल द मॉर्निंग। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक रूल्स। अभी देखते हैं यूसेज। नाउ टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शंस। पैरेलल क्या होता है, मैथ्स में ये वाला सीखा था, ये वाला पैरेलल। तो यहाँ पे जैसे पैरेलल मतलब दो चीजें एक ही साथ होना। ठीक है। सो व्हाइल आई वाज वॉशिंग द डिशेस आई हर्ड अ लाउड नॉइज। ठीक है। सो दोनों चीजें जब एक साथ होते हैं, जो जो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस है जो कि हम लोगों ने कॉमा से ज्वाइन किया है। सो द फर्स्ट सेंटेंस वी आर यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। The next word to describe what someone was doing at a particular point in time. So I was working in garden all day. कोई भी चीज अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कर रहा हो, then only we use past continuous tense. Then to express interrupted action in the past. Interrupted action मतलब आप कुछ चीज कर रहे हो तो कोई आके उसको इंटरप्ट कर दे, मतलब डिस्टर्ब कर दे। तो लेकिन वो चीज पास्ट में होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर उस टाइप की चीजों को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, देन वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल देख लेते हैं। आई वाज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रैश्ड माय कार। लास्टली टू डिस्क्राइब रिपीटेशन एंड इरिटेशन। अभी रिपीटेशन का मतलब आप लोग को पता है, कोई भी चीज अगर रिपीटेड हो रही हो, देन वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड लास्टली इरिटेशन। रिपीट तो कोई चीज हो रही है, लेकिन उस चीज से अगर हम लोग इरिटेटेड हो रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग एनॉयड, ठीक है, देन वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक ही वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन द क्लास। मतलब ये बंदा हमेशा कंप्लेन करता है क्लास में, हमेशा तो करता ही है, वो हो गया रिपीटेशन। साथ में इरिटेशन, तो अगर कोई हर रोज कंप्लेन करेगा तो वो तो इरिटेशन ही होता है ना। तो टू एक्सप्रेस दीज थिंग्स वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी ये हो गया some more examples. Please go through them, read them aloud, क्योंकि आप जब जोर शोर से पढ़ोगे, और फिर आप लोग जब पढ़ोगे ना, एक बार देख के पढ़ना, एक बार बिना देख के पढ़ना, एंड प्रैक्टिस दिस द वे यू विल लर्न। ठीक है। अभी आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आप लोगों को एक बात बोली थी कि जहां पे परफेक्ट है वहां पे हैज, हैव या हैड लगेगा। अभी हैज एंड हैव क्या होता है, वो प्रेजेंट टेंस में चला जाता है, वो पास्ट टेंस का कोई पार्ट है ही नहीं। आप जब भी किसी चीज में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हो, हमेशा याद रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन की भी बात नहीं है, हैड ही लगता है। ठीक है। The past perfect tense in English is composed of two parts: the past tense or the verb to have had, plus the past participle of the main verb. Past participle हमने V1, V2, V3 में देखा था, that is the V3 form of the verb यहाँ पे लगता है. So had plus past participle. So positive, negative and interrogative. Subject plus had plus past participle, she had finished. Subject plus had not plus past participle, she hadn't finished. And had plus subject plus past participle हो जाता है इंट्रोगेटिव। सो हैड शी फिनिश्ड। अभी हम लोग यूसेज देखते हैं कि हम लोग ये पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं। सी नंबर 1, एक्शन फिनिश बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ये हमेशा याद रखना। जो हम लोगों ने लास्ट देखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ये था टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शंस। So always remember parallel actions means when both the actions are happening together at the same time. लेकिन यहाँ पे हम लोग दो एक्शंस की बात कर रहे हैं। We are talking about two actions, okay? But here they are not parallel. What happens here is that one action gets finished before another past action. Like
Richard had gone out when his wife arrived in the office. ठीक है, like which action happened earlier? So Richard had gone out. Richard पहले जा चुका है जब उसके wife office मतलब he arrived in office. Number 2, action happened before a specific time in the past. तो अगर specific time फिर से आ जाता है उसके पहले अगर कोई चीज हो गई हो, like Christine had never been to an opera before last night. We use past perfect tense. An action started in the past and continued up to a given time in the past. सब चीज पास में हो रहा है, लेकिन इसमें क्या ट्विस्ट है कि ये कोई भी एक्शन पास में स्टार्ट हुआ था एंड पास में कंटिन्यू हुआ था एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान. Like we had owned that car for 10 years before it broke down. Then cause and effect combined with past simple. ये हमेशा याद रखना, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है जब भी आप cause and effect. cause मतलब क्या बोलूं मैं, सपोज आपका सिर दर्द कर रहा है. क्यों दर्द कर रहा है? आपने बहुत टाइम से यूट्यूब में ही आपका आप देख रहे थे, सारे दोपहर को आपने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब देखा, इसके लिए आपको सिर दर्द कर रहा है. ठीक है, नाउ द कॉज इज because you have watched YouTube all the afternoon, that is the cause, and the effect is what? That your eyes are paining now. Okay, so cause and effect, two things are happening. Now I got stuck in traffic because there had been an accident. I got stuck in traffic, यहाँ पे जो कि पहला जो होता है ना, that is the effect part होता है, वो क्या होता है, वो सिंपल पास्ट में आप यूज करोगे. लेकिन जो कॉज पार्ट है उसमें आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस. तो ये हमेशा याद रखना कॉज एंड इफेक्ट में. पहले वाला जो होता है दैट इज इफेक्ट पार्ट, कि क्यों हुआ है चीज, मतलब क्या चीज हुई है. द इफेक्ट पार्ट उसमें आप लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करोगे, एंड क्यों हुई है दैट इज अ कॉज, उसमें आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करोगे. लास्टली टू एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब है इंपॉर्टेंस देना, द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट. ठीक है, किसी पास्ट का किसी चीज हो गया, उसका रिजल्ट आप लोग को एक्सप्लेन करना है. टू एक्सप्लेन दोस, टू एक्सप्रेस दोस things we use past perfect tense. That is, I had been to London twice by the time I got a job in New York. I hope you all understood. इसमें बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पढ़ लेना अच्छी तरह से, प्रैक्टिस करना. ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स है ना कि हम डे टू डे भी यूज करते हैं. ओके, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये होता है लास्ट पार्ट. लेट्स बिगिन नाउ. Positive, negative, and interrogative sentence. Subject plus had been plus verb ing. They had been playing tennis. Then subject plus had not or hadn't plus been plus verb ing. तो continuous में ing लगता है क्योंकि past perfect है, had लगेगा, और हम लोगों ने present में भी देखा था कि एक word लग जाता है, वो है been. So subject plus had plus been plus verb plus ing. So they had been playing tennis, they hadn't been playing tennis, and lastly had they been playing tennis. अभी आ जाते हैं कि हम लोग कब यूज करेंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नंबर 1, टू डिस्क्राइब एन a past action already started and continued up to another action or time in the past. थोड़ा सा ज्यादा लंबा लाइन हो गया, लेट्स ब्रेक इट डाउन. so to describe a past action, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो चुकी हो. already started, पास्ट एक्शन कोई चीज स्टार्ट हो चुकी है, एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट. एग्जांपल देखते हैं. द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉकर फॉर अबाउट एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन. तो द बॉयज एक पास्ट एक्शन, दे हैड बीन प्लेइंग सॉकर, ऑलरेडी वो लोग सॉकर खेल रहे थे. फॉर अबाउट एन आवर यहाँ पे दिया गया है स्पेसिफिक टाइम तक, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन. देन आ चुका है नंबर 2, टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट. So Richard needed a holiday because he had been working hard for 6 months. So to express a duration, duration होता है टाइम लिमिट, कि कितने दिनों से ये कर रहा है, like कितने दिनों का ये कोर्स है या कितने दिनों से आप पढ़ रहे हो, that is called duration. So Richard needed a holiday because he had been working hard for 6 months. And lastly, to describe the cause of something in the past. So he was tired because he had been jogging. Again, to describe the cause of something that happened in the past, वो क्यों टायर्ड था, क्योंकि वो जॉब कर रहा था. तो ये हो गया
आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो इसी से खत्म होता है पास्ट टेंस। So I hope you all have understood the entire part of the past tense. Tomorrow we'll be finishing the entire tense chapter with your future tense. So that's it for today.